mein Name ist Clemens. Okay, das haben Sie schon durchgelesen. Clemens Mutter kommt aus dem Libanon. False. Aber hier Clemens kann sich kaum noch an die Zeit im Libanon erinnern. Richtig oder falsch? Richtig. 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 Und wo ist die Antwort? Abschnitt 2 hier. Das erste Land, an das ich mich erinnere, ist Portugal. Richtig. So, kaum noch an die Zeit erinnern. Das heißt, er erinnert nicht. Und das ist richtig. Das erste Land, an das ich mich erinnere, ist Portugal. Hier ist die Antwort 1. आपको इस विलेज को बोलना होगा यहाँ से। हाँ इससे जब टोटल टाइम की वजह से होगा ना ये आंसर। इससे पहले हिस्ट्री बताई है इसने कि ich wurde in Deutschland geboren, I was born in Germany, aber schon als ich 2 Wochen alt war, bin ich mit meiner Mutter nach Beirut geflogen. Das ist die Hauptstadt des Libanon. This was the capital city of Lebanon. इसका मतलब है कि वो 2 वीक का था तभी से विदेश में रहता है एंड बेरूत में रहा शुरू में, लेबनान में। aus den ersten Jahren weiß ich nicht mehr. और मैं आज भी विदेश में ही रहता हूं, लेकिन शुरुआत में कहां रहा मुझे कुछ याद नहीं है। Das erste Land, an das ich mich erinnere, ist Portugal. I remember the first foreign country is Portugal. तो उससे पहले वाले तो उसको पता ही नहीं है। He doesn't remember. So पहला ये उसको याद है। एक्चुअली सर मैंने जिससे ऊपर वाली लाइन है ना उसमें ये एरिनरी यार वाइस ने इसलिए बेस पे रिस्ट्रिक्ट किया उसने। यहाँ पे आपको क्लेमेंस खान जिस kaum noch an die Zeit im Libanon कि लेबनान के बारे में उसको कुछ याद नहीं है। अभी आप एरिनरन से एरिनरन मिला रहे हो तो ये सही नहीं है, आपको पढ़ना समझना पड़ेगा कि द फर्स्ट कंट्री ही हैज इन माइंड इज पोर्तुगाल। इसका मतलब है इससे पहले वाला नहीं है, तो उसको लेबनान के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ तो कुछ याद नहीं है उसको, दैट्स व्हाई। क्लेमेंस हाउस इन पोर्तुगाल लागा मेयर, उसका जो पुर्तगाल में हाउस है वो सी के किनारे है। इज दैट रिस्टिश और फॉल्स? Entschuldigung, या शिल्पी? können Sie mir Teilnummer sagen? Das ist 1. Lesen 1. Unser B1. Nein, das ist nicht B1 Buch. Das ist Prüfungsvorbereitung. Prüfungsvorbereitung Buch. Das habe ich in die Gruppe mitgeteilt. Ja. Also das war dann die Antwort 1 hier. Richtig. 2. Clemens Haus in Portugal lag am Meer. Richtig oder falsch? Warum falsch? इसी लाइन में मुझे ये राजा लाइन मेरे को ज्यादा था लेकिन उसका वर्ब उसके बाद नहीं था। Okay. Am Wochenende waren wir oft an einem wunderschönen Strand nördlich von Lissabon. Das Meer, eigentlich muss ich sagen, der Ozean war dort herrlich blau und habe gern am Sand gespielt. So, वो जाता था वीकेंड में, बट घर वहां नहीं था। नहीं तो जाता ही क्यों, वहीं होता नहीं तो। Du hast recht. Ja, die Antwort 2 ist falsch. lag nicht am Meer। और इसने लिखा है हाउस lag am Meer। It was at sea coast। No, it was not। So false। 3. Clemens besuchte einen englischsprachigen Kindergarten।
Richtig. The Antwort ist richtig. Warum? Hier. English musste ich schon lernen zu lernen. Usually was ein international Kindergarten gegangen. Genau. Ich bin in Portugal in einen internationalen Kindergarten gegangen. Alle Kinder kamen dort aus anderen Ländern und deshalb wurde Englisch gesprochen. Also hier, internationalen Kindergarten, also das ist dann richtig. Besucht hat, internationalen, englischsprachigen, because all the Schüler, they came from foreign countries, so they needed international school. In Berlin wohnte Clemens bis zu seinem siebten Lebensjahr. Richtig oder falsch? Immerhin 7 Jahre sind wir in Berlin geblieben. Sir, he stayed in Berlin till 12 years. Yes! He was 5, he went. From 5 to 12. For 7 years. 7 Jahre, aber nicht zu seinem 7. Jahr, Lebensjahr. From 5 till 12, he was there. 7 साल बर्लिन में रहा, लेकिन 7वें साल तक नहीं, 7 साल. Also das ist dann falsch. Zu seinem 7. Lebensjahr, das ist falsch. It means from 0 to 7. The impression of this sentence is कि वो बचपन से लेके 7 साल तक रहा. 7 साल तक नहीं रहा, वो 7 साल रहा, 5 से 12. बिकॉज शुरू में तो वो विदेश में था. So this is false. Clemens यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है दिस टू और इमरहिन. एटलीस्ट 7 साल अपने जीवन के वहाँ रहा और ये दिस टू, तो इसको कैसे आइडेंटिफाई किया आपने, थोड़ा बता दीजिए. Zu seinem Lebensjahr का मतलब है till 2. ये लिखा है ना बिस्सु. बिस्सु का मतलब है till 2. Till 2 his 7th year of life. तो 7th year of life का मतलब है 7वां साल. वो 7वें साल तक बर्लिन में रहा. तो 7वें साल तक नहीं रहा, 7 साल रहा. 7वें साल तक का तो मतलब 0 से 7, यही तो इंप्रेशन हो गया ना. यस सर. यस, बट वो तो बाहर था. हमने अभी पढ़ा तो पता चला ना हमको. फ्रॉम 2nd week of his birth he was in foreign countries, here and then Portugal, Lebanon, then he comes to Berlin. So that's why Bissu till 2. Yeah. 5. Clemens meint, he means, he says, es gibt große Unterschiede zwischen Berlin und New York. There is big difference between Berlin and New York. Richtig? New York, okay. New York. Jetzt seit einem mit meiner Fabrik in New York. Ja, es ist. So New York ist in den meisten Dingen ganz anders als Berlin. It's just different. In manchen Stadtvierteln gehen die Leute nur zu arbeiten, in anderen leben sie und in manchen gehen sie gar nicht, weil sie gefährlich sind. So, this is the answer. Schön. Hier. सर इस नीचे वाले पैराग्राफ में इर्गेंड वन से जो लाइन है उसका क्या मतलब होगा? इर्गेंड वन का मतलब है कभी. नहीं, पूरी लाइन मतलब. ओके, एक मिनट. इसको क्या किया हमने? क्लेमेंस माइंड एस्किप रिश्टिस किया इसको. ओके, लास्ट वन. इन न्यूयॉर्क फ्यूल्ड दिस क्लेमेंस jetzt wie zu Hause. इस सेंटेंस का मतलब तो यह है कि न्यूयॉर्क में he is feeling like in his homeland. एंड यहाँ पे आपने बोला इर्गेंड वन. इर्गेंड वन का मतलब है sometime, कभी. एंड werden plus infinitive is used for future. Werden plus infinitive verb. And here he is saying irgendwann wird sich sicherlich
Auch New York für mich wie Heimat anfühlen, कि कभी न कभी शायद न्यूयॉर्क में भी मैं एट होम फील करूंगा, कभी न कभी करूंगा। तो अभी करता है क्या? न्यूयॉर्क, in New York fühlt sich jetzt wie zu Hause, richtig oder falsch? False, because कभी ना कभी करेगा, अभी नहीं करता। So the false. It means he is feeling now, but no, he is not feeling now at home. अभी तो नया नहीं आया, 6 महीने पहले ही आया। देखो यहाँ पे लिखा है seit einem halben Jahr lebe ich mit meiner Familie in New York. Now since 6 months I am living with my family in New York. Aber das ist anders. It is not like Berlin. Also es braucht Zeit. It takes time. Sometime maybe later on in his life, sometime he will start feeling like home. So that's what is the important here. सर ये 6 के अंदर तो ये लास्ट वाली लाइन में तो यही बोल रहा है कि हैमरलैंड की फीलिंग आती है न्यूयॉर्क में। नहीं आती, ये कह रहा है इर्गेंड वन। इर्गेंड वन का मतलब है कभी न कभी, नॉट नाउ। इर्गेंड जो वर्ड है, इर्गेंड, इर्गेंड वेयर, इर्गेंड वोहिन, इर्गेंड वन, इर्गेंड वास, तो इससे क्वेश्चन वर्ड बनते हैं इर्गेंड वेयर, कोई, कोई, इर्गेंड वोहिन, कहीं। जैसे कोई बोले कि वीकेंड में घूमने चलो, कहाँ चलें? अरे यार कहीं भी चलो, कहीं ना कहीं चलो, कहीं, तो कहाँ? पता नहीं कहाँ। वीर गेहन इर्गेंड वो, तुम तो आ जाओ, कहीं ना कहीं चलेंगे। वीर गेहन इर्गेंड वो हिन, गेहन आ गया तो इर्गेंड वो हिन। मेरा मोबाइल कहाँ है? पता नहीं। अरे कहीं तो पड़ा होगा, हाँ कहीं तो होगा ही, तो कहाँ है? पता नहीं, कहीं तो है, कहीं तो है। इर्गेंड वो, तो कहीं, कहीं तो, कहीं से तो, कुछ तो दे दो यार खाने को, कुछ तो दे दो। इर्गेंड वास, समथिंग, वन, कभी तो, कहीं तो। गाना भी खाना खाए, गाना भी था। ओके, तो अभी नहीं फील कर रहा वो, कभी ना कभी फील करेगा वो। नी हाउ मामा, नी हाउ मामा। एडवांस में जब आप पढ़ के आ रहे हो ना लोग, उनको तो आएगा समझ में, पढ़ के नहीं आएंगे उनको नहीं आएगा भाई। सो ये वाला देखते हैं हम लोग, नी हाउ मामा। सो दिस इज ए प्रोजेक्ट है। नी हाउ मामा मतलब हेलो मामा, इट्स ए चाइनीज वर्ड। दिस टेक्स्ट इज इन जर्मन ओनली, but this heading is in Chinese. Ni hao mama, hello mama, कैसे हो mama, han hao, बढ़िया हूँ। So Tong Shung, what is the story here? Tong Shung is a Chinese student, a person, Chinese person. He is now in Germany, living with a German family, and the name of the German family is Jakob Shung, Jakob Jones. And in this family, Tong Shung ist aus China und 3 andere Gaststudenten. Other than Tong Shung, 3 more students are from China. Tong Shung के अलावा 4 और भी है, 3 और भी है। टोटल 4 लोग इस फैमिली में रहते हैं। And because now the family is old, the children, their children are not living in the house. They have already left. जर्मनी में तो बच्चे 15-16 साल के होते हैं तो वो अपना घर छोड़ देते हैं, तो उन्होंने छोड़ दिया उनके बच्चों ने, तो already they are living somewhere. So this family means दोनों husband wife अकेले फील करते हैं बुढ़ापे में। तो जर्मनी ने एक प्रोजेक्ट चलाया कि फॉरेन स्टूडेंट्स अगर ऐसे ओल्ड लोगों के साथ में रहते हैं तो शायद उनको पैसा कम देना पड़ता है। कुछ तो प्रोजेक्ट है इस तरह का, यहाँ पे कुछ था भी। ausländische Studenten, Senioren für ausländische Studenten. So Tong Shun telefoniert immer mit Rita Jakobsen, wenn eine gute Note hat. In the text it is given कि हम लोग जैसे हमारी मम्मा को बताते हैं, छोटे होते हैं हम लोग तो मम्मा को बताते हैं मार्क्स कैसे आए, आज स्कूल में क्या हुआ, सारी बातें अपनी मम्मा को बताते हैं, पापा को नहीं बताते, पता नहीं क्यों, है ना। तो मम्मा सुनती है ढंग से,
तो मम्मा को बताते हैं। तो ये भी यहाँ पे मार्क्स वगैरह जैसे भी आते हैं तो अपनी मम्मा को बताता है, तो मम्मा को बताते हैं तो ये अपनी चाइनीज वाली मम्मा को नहीं बताता, असली को नहीं बताता, ये तो यहाँ जिसके यहाँ रहता है उसको बताता है फोन करके। अब ऐसे मत पूछ लेना क्यों बताता है, ये नहीं दिया हुआ इसमें। So Townshend telefoniert immer mit Rita Jakobsen, wenn eine gute Note hat. If he gets good marks, he talks. Ruft seine Mutter in Shanghai, nur selten. It's not given here. Findet das normale deutsche Familienleben schrecklich. No, it's not given. He's enjoying his life here in Germany. So in diesem Text geht es darum, what it is all about. Text में क्या बात है? A, B, C. तो प्रोजेक्ट के बाद This Marcus Junior and Pure Ausland ist der Student. C? Ja, das ist richtig. Was das Projekt Junioren für ausländische Studenten ist. So in this text, it's all about the project Junioren für ausländische Studenten. इस बारे में है ये, मेनली इसी थीम पे है ये टेक्स्ट। Und das Ehepaar Jakobsen, this Jakobsen family wollte nicht, dass die eigenen Kinder das Haus verlassen. They did not want that their children leave the house. Sieht seine Gaststudenten regelmäßig, machte erst einmal einen Crashkurs in deutscher Kultur. बोलो बोलो, A, B, C. सर इसका पे हाँ, पे लिव डाइना रात स्टूडेंट regelmäßig। यस सर। तो इसमें तो लिखा है कि जो an Sonntagen jeden Sonntag auf dem Sofa sitzt und Sandkurs ist। Du hast recht, das ist die Antwort। आंसर यही है, बिकॉज एवरी संडे का भी मतलब रेगुलरली है। रेगुलरली का मतलब ये नहीं है कि सुबह शाम हम लोग स्टाब्लिश करते हैं तो रेगुलरली करते हैं, पहले वीकेंड पे करते थे तो भी रेगुलर था। सर इसमें जो है वो का मतलब हो गया कि वो हर संडे। यस, हर संडे। जोनटाक्स मतलब एवरी संडे। यस, मोन्टाक्स मतलब एवरी मंडे। अबेंड्स मतलब एवरी इवनिंग। एस लग जाता है तो वो एवरी के लिए आता है। इफ यू से आम मोन्टाक, it means on Monday, but if you say montags, it means every Monday. Yes, so here it is jeden Sonntag। खैर यहाँ तो jeden लगाया इन्होंने। On every Sunday they meet, so das ist die Antwort eigentlich। Richtig। ये क्यों नहीं है, सी वाला क्यों नहीं है? क्रैश कोर्स तो था इसमें। क्रैश कोर्स वर्ड तो दे रखा था, ये क्यों नहीं आंसर? सर वो तो क्रैश कोर्स तो ऐसा है ना, बच्चे अपनी इंटरेस्ट के बेसिस पे कर सकते हैं वहां पर। नहीं, यहाँ पे दे रखा है was die Jakobsen mit ihren Schützlingen machen, könnte man einen Crashkurs nennen in der Kunst das wirklich normale Deutsche। मतलब ये कह रहे हैं कि याकोब्सन जर्मन फैमिली है, वहां पे फॉरेन स्टूडेंट आते हैं, उसी फैमिली के पास रहते हैं, त्योहार होता है तो वो त्योहार बनाते हैं, केक कैसे बनाते हैं जर्मन्स वो केक बनाते हुए भी देखते हैं। तो डे टू डे लाइफ जर्मन्स की वो सीखते हैं। यू कैन कॉल इट ए क्रैश कोर्स, कि कोई आपके पास आके ये सब करेगा देखेगा सुबह शाम, तो क्रैश कोर्स आप कह सकते हो, बट है थोड़ी क्रैश कोर्स। माखन और ये फैमिली याकोब्सन फैमिली को कोई जर्मन क्रैश कोर्स करने की कहां जरूरत है? वो तो खुद ही जर्मन है, तो इसका कोई सेंस नहीं है। बट आपको बता रहा हूं कि व्हाई इट इज नॉट। इसमें लिखा हुआ है कि ये याकोब्सन फैमिली जो है एक क्रैश कोर्स जर्मन कल्चर में कर रहे हैं। वो क्यों करेंगे, खुद ही जर्मन है। एंड wollten nicht dass ihre eigenen Kinder das Haus verlassen, कि वो नहीं चाहते थे कि उनके खुद के बच्चे घर छोड़ के जाएं। तो ऐसा तो लिखा हुआ ही नहीं है कि खुद के बच्चे घर छोड़ के नहीं जाएं, ऐसा चाहते थे वो। तो इनमें ये लिखा है
कि जब उनके बच्चे घर छोड़ के चले गए तो वो ये चाहते थे कि वो कोई आए तो उसकी सेवा वैसे ही करे। ये देखो यहां पे कुछ था, als unsere eigenen Kinder aus dem Haus waren, wollten wir uns um anderen kümmern। हमको बच्चे केयर करने की आदत थी, खुद के चले गए तो हम चाह रहे थे कोई औरों के बच्चे केयर कर ले हम। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम नहीं चाहते थे हमारे नहीं जाए। जर्मन्स के तो जाते हैं, तो उनके तो मेंटली पहले ही दिमाग में क्लैरिटी है, अपने तो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वन, viele Gaststudenten aus Offenburg ABC। haben schlechte Erfahrungen in Deutschland gemacht. Student here in Deutschland bleiben. ओके, सो अभी किसी ने बोला से haben schlechte Erfahrungen in Deutschland gemacht। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो बच्चे आए उनका एक्सपीरियंस बहुत बुरा था। उनका तो बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस, बुरा कहां था, अच्छा था। इस बात का ये भी प्रमाण है, लास्ट में देखो, Das Offenburger Junioren auf Gaststudenten attraktiver wirken als die Schöne Partys in Berlin। कि जो Offenburger आके लोग क्यों रहते हैं, बर्लिन में रहना चाहिए उनको तो, लेकिन लोग बर्लिन की बजाय Offenburg में आके रह रहे हैं इन सीनियर्स के पास। Zeigen die Statistik shows that am Anfang des Aufenthalts wollen nur 20% der Gaststudenten nach ihrem Abschluss in Deutschland bleiben। When in the beginning, जब भी वो बच्चे आते हैं उनके इंटरव्यू होते हैं, तो शुरू में उनसे पूछो कि ये कोर्स करने के बाद में यहाँ आप जर्मनी में हो, यहाँ पे रुकना चाहोगे या अपने कंट्री में वापस जाओगे, तो 80% कहते हैं वापस जाएंगे शुरू में उनका इंटरव्यू करे तो। और जाने से पहले जब कोर्स खत्म हो जाए तब उनसे पूछते हैं जाओगे कि रहोगे, कहते हैं यहीं रहेंगे, राइट। 80%। शुरू में 20% कहते हैं यहाँ रहेंगे, और लास्ट में आमेंड है जिनके 80%, 80% यहीं रहने वाले हैं। इसका मतलब खुश है, तभी तो यहाँ रहना चाहते हैं। सो दिस वन इज करेक्ट, würden gerne in Deutschland bleiben। Viele Studenten aus Offenburg, they would like to stay in Germany only। So jetzt वेब स्टाम्प देखो, आपको अगर इसमें पूरा 100% समझ में नहीं आए तो दिल पे मत ले लेना इसको। यू शुड अंडरस्टैंड द बिटवीन द लाइन्स, मोटा मोटा समझ में आना चाहिए। वो कैब कोशिश करो सारी लर्न हो जाए, बट आपको इसका एक जस्ट गो थ्रू एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी लाइन, दैट्स इट। इन diesem text geht es darum what it is all about। तो इसमें ये जो है जो पोस्ट है के बारे में है। It's about stamp। सर से किया मैंने, से किया है तो मेरे साथ वो होगा आ। पोस्ट। ओके, किसी को आ लग रहा है, किसी को बे लग रहा है, किसी को से लग रहा है, ठीक है। बट व्हाट इज द स्टोरी, ये किस बारे में है, व्हाट इज द स्टोरी? सर स्विस पीपल ने एक स्टैम्प बनाया है। स्विस पीपल ने क्रिएटिव एक न्यू आइडिया है जिसमें आप अपना पर्सनल स्टैम्प बनवा सकते हो जो आप कंपनीज को भेज सकते हैं, बट थ्रू द वेबसाइट ओनली, बट नॉट Die Schweizerische Post hatte mit der Webstamp der elektronische Briefmarke eine kreative Idee. Der Webstamp bietet die Möglichkeit, direkt am PC eigene Briefmarken gestalten und ausdrucken। This is the idea actually। This is the idea। मतलब जो स्विस पोस्ट ऑफिस है उसमें उसको एक जबरदस्त आइडिया आया, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों को, हम लोग जब भी अपन को लेटर पे कुछ चिपकानी होती है एनवेलप पे, तो हम लोग पोस्ट ऑफिस में जाके खरीदते हैं ना स्टैम्प। उसमें या तो गांधी जी मिलते हैं या सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष, ऐसे अलग अलग फोटो रहती है हमारे हीरोज की, और कभी कभी केवल ताजमहल, बिल्डिंग भी हो सकती है, इस तरह की चीजें होती हैं। अब स्विट्जरलैंड के पोस्ट ऑफिस ने क्या किया
कि यार इनमें इंटरेस्टेड नहीं है, लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, उनको एक छूट दी कि बोले कि आप जब ये पोस्ट खरीदते हो, फॉर एग्जांपल लगानी तो पड़ेगी पोस्ट ऑफिस के लिए। सो सपोज हम लोग 5 रुपए का सरदार वल्लभ भाई पटेल का वो खरीद के ऊपर चिपकाते हैं। उन्होंने बोला आपसे आप एक काम करो, ये जरूरी नहीं है आप वल्लभ भाई पटेल का ही चिपकाओ, आप अपना खुद का फोटो भी निकाल सकते हो, उसको चिपका दो, खुद ही बना लो डिजाइन। आप अपनी कंपनी का लोगो भी चिपका सकते हो यहाँ पे, ताकि आपका प्रचार भी हो। और रुपए कितने लगेंगे? अभी भी 5 ही लगेंगे। पहले 5 रुपए का लगता था, अभी भी 5 ही लगेंगे। तो कॉस्ट ये फ्री तो नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं लग रहा। यू हैव टू मेक योर डिजाइन, मे बी योर लोगो, योर नेम, एंड सो दिस वॉज द आइडिया। सो in Visum text, Gate as Darun, it is not about the post office कि पोस्ट ऑफिस कैसे चलता है, इस बारे में डिटेल नहीं दी, बिकॉज पोस्ट ऑफिस में तो 1000 काम होते हैं। मे बी वो इंश्योरेंस भी करते होंगे, पोस्ट ऑफिस वाले तो बहुत पैसे जमा करते हैं शायद, क्या क्या करते हैं, कई काम करते होंगे ना। लेकिन यहाँ पे उनका स्विस पोस्ट ऑफिस कैसे चलता है, कैसे काम करता है, वो नहीं बताया। उसमें से केवल एक काम की चीज बताई है। वो क्या बताई है? वेबसाइट से वो इंटरेस्टिंग है कि नहीं, वेबसाइट इंटरेस्टिंग है ये भी नहीं बताया। द श्वाइत्जर पोस्ट eine interessante Website hat। वेबसाइट से मतलब नहीं है, द आइडिया इज इंटरेस्टिंग, नॉट द वेबसाइट। मे बी वेबसाइट तो बोरिंग हो, बट द आइडिया इज इंटरेस्टिंग। सो व्हाट इज द आइडिया? Man eine Briefmarke selbst machen kann. Sie können das selbst eigene gestalten, means machen. So says the Antwort, you can make your own stamp. Sir, but last paragraph में it is mentioned nach der Anmeldung auf der Website der Schweizerischen Post ganz losgehen mit dem Gestalten einer individuellen Briefmarke. So I think that means कि आप वेबसाइट पे रजिस्टर करके अपना बना सकते हैं। आप कैसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेबसाइट पे रजिस्टर, कोई तो प्रोसेस तो होगा ही उसका, बट द आइडिया इज दैट यू कैन मेक योर ओन। दिस इज द आइडिया हियर, दिस वन। नहीं सर, सर फर्स्ट पैसेज में, फर्स्ट पैसेज में ये लास्ट Here, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट लाइन, फोर्थ लास्ट लाइन। फोर्थ लास्ट ना फेयर, nach der Anmeldung. Nach der Anmeldung. So, nach der Anmeldung means after the registration on the website, der Schweizerischen Post kann es losgehen. आपको रजिस्टर, वेबसाइट पे रजिस्टर करना है, you have to register and then you can make your own individual. तो रजिस्टर तो करना है, ऑफ कोर्स वेबसाइट तो है, प्रोसेस कैन बी एनी, बट देयर इज सम प्रोसेस, बट द आइडिया इज दैट यू कैन मेक योर ओन। दिस इज इंटरेस्टिंग थिंग। इसमें ये थोड़ी पता चलता है कि उनकी वेबसाइट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ऐसा नहीं है। सर आई एग्री, बट सॉरी, बट आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि वेबसाइट ही इंटरेस्टिंग है। हाँ। एक नया आइडिया उन्होंने वेबसाइट पे ही डाला है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, लग सकता है अपन को। कभी कभी ऐसा लगेगा कि तीनों ही सही है ना, कभी कभी लगेगा, बट दिस इज द आंसर अकॉर्डिंग टू मी। Das eine Briefmarke man selbst gestalten kann, this is the answer. The web stamp, next. Hat den selben Preis wie eine normale Briefmarke oder gilt nur in der Schweiz oder wurde von einer Werbefirma erfunden? सर आ है सर इसका, A है? Where is the answer? Yes, sir. Here, somewhere. Man bezahlt nur das Foto, den Wert, den Briefmarke, den Hart. Eine Franken Briefmarke kostet dem nach auch nur einen Franken. Yes. So das war 10, das ist 11. They are saying that it will cost only as much as it used to
cost earlier. कि जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 franc का कोई ब्रीफ मार्का है, इट विल कॉस्ट ओनली 1 franc. So that is then Gelben price, same price like the normal. The Adresse des Empfängers, the address das ist richtig. Hier, ich habe auch irgendwo das gesehen. Wo ist das? Excel. Man kann in Excel importieren. Ja. Adresse können direkt aus Excel importieren. Ja, richtig. Wer ist die Antwort? You can import it. Und hier Teil 3. We'll try to find out one by one. Das müssen Sie mal lesen. Lesen Sie die Situation 13 bis 19 und die Anzeigen A bis J. You have to just go through the situations and the advertisement from A bis J. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J तक की पढ़ना है. Wählen Sie, welche Anzeige passt zu welcher Situation? Which advertisement suits to which situation the best? Sie können jede Anzeige nur einmal verwenden. You can use only once. One situation once. Die Anzeige aus dem Beispiel können Sie nicht mehr verwenden. It means, in example, suppose B is given, you cannot use it here. And then, für eine Situation gibt keine passende Anzeige. For one situation, there is no suitable advertisement. In diesem Fall schreiben Sie 0. In this case, you will write 0. So 1, it's given. Susanne möchte im Urlaub verreisen und weiß nicht, wer in dieser Zeit auf ihre kleine weiße Maus aufpassen kann. सुजाने को हॉलिडेज पे जाना है, बट इसका छोटा सा माउस है, उसकी कौन केयर करे? वापस आए जब तक तो बचना तो चाहिए ना, तो कौन केयर करे उसका? ये इसका गे है, Yes, sir. Geh Unterwischen für Tier. Sie wollen ihren Urlaub ohne Sorgen das Haustier genießen. कि अपने हॉलिडेज में आपको हाउसटियर की चिंता नहीं करनी पड़े. Wir versorgen Kleintiere, liebevoll. Yes, छोटा ही है उसका माउस, so Kleintiere के लिए ये परफेक्ट है. फिर टियर क्लिनिक ही है ये. Yes. Ja, richtig. G ist die Antwort hier. Okay. Next. Thomas ist Single und hält sich einen Deckel. थॉमस सिंगल है और उसके पास एक डाकल है. डाकल एक डॉग की ब्रीड है, कुत्ता है ये, बड़े से कान वाला, छोटी सी साइज वाला. Die Nachbarn haben sich beschwert, weil der Hund in der Wohnung laut wird. Neighbors, उसके जो पड़ोसी हैं, they are not happy because it is loud. ये डॉग जो है वो तो चला जाता है काम पे, उसको घर पे मन नहीं लगता, कुत्ता चिल्लाता है पीछे से. Der Hund wird laut. Wenn Thomas tagsüber im Büro ist, möchte das Problem lösen. He would like to solve the problem. हाँ. हाँ सर. हाँ सर. हाँ है? तो ये तो उर्लाउब है. सर आमलेट टाकी है. ऑर्डर आम टाग भी है, ऑर्डर लिखा हुआ है. ये हॉलिडेज में जाओ तो यहाँ छोड़ सकते हो, और आम टाग मीन्स ड्यूरिंग द डे ऑल्सो यू कैन कीप योर डॉग हियर. नूर हुंड है, बट इट इज ओनली फॉर डॉग्स. तो हमको औरों से क्या मतलब? डॉग्स के लिए चाहिए उसको तो. और स्पेशली नूर हुंड है दी für die Wohnung geeignet sind. सो वोनुंग वाले डॉग, यस, ये वाले छोटे मोटे इस तरह के चलेंगे उसको. सो das ist richtig. हाँ, हाँ इज द antwort. रीजन है उसका क्योंकि वो पर्टिकुलर डॉग्स के लिए ही है. नेक्स्ट. Okay, Rajveer, will you read this one? 15th. Yes, sir. Die Familie Schmidt hat einen großen Garten und eine Bernhardner Hündin.
Damit ihre Haustiere nicht allein ist, wären sie bereit, einen zweiten Hund aufzunehmen. Er soll aber nicht so groß sein. किया सर। किया इसका रूल है कौन सा रूल है ओके। आ और किसने किया है? आ। ओके, सरदार ने भी आ किया है, राजवीर ने आ किया है। ओके, आंसर भी इसका आ ही है। आ क्यों है इसका? यहाँ पे देखो, इसने बोला ये है थोड़ा टिपिकली, थोड़ा सा टेढ़ा ही है ये क्वेश्चन। इसने बोला दी फैमिली स्मिथ hat einen großen Garten. This family has a big garden. Und eine Bernhardier Hundin. और उनके पास एक कुत्ती भी है, हुंडिन। गार्डन है, एक फीमेल डॉग भी है। Damit ihr Haustier nicht allein ist, wären sie bereit, einen zweiten Hund aufzunehmen. कि उनका ये जो डॉग है उनकी, ये अकेली नहीं रहे, तो वो दूसरा एक डॉग लेने को रेडी है। एयर जोल आवर नेक्स्ट जो ग्रोस साइन, बट ये जो दूसरा डॉग है वो बहुत ही बड़ा नहीं होना चाहिए। सो वाई आर हियर dringend gesucht, they are searching Frauchen oder Herrchen, die Armen, Rotem, Cocker Spaniel, ये कोई स्पेशल डॉग की प्रजाति है, रूड है, कास्ट्रियर्ड, और उसका साइज भी दे रखा है किस टाइप का ये डॉग है। Nach dem Tod seines Frauchens ein neues Zuhause geben, कि भाई ये कोई है यहाँ पे। Nach dem Tod deines Frauchen, इनके पास जो कुत्ता है ये किसी और को देना चाहते हैं। मतलब पहले तो शायद इस घर में हस्बैंड वाइफ दोनों होंगे जो केयर कर लेते थे, अब वो केयर नहीं कर पा रहे हैं, तो दे वांट टू गिव दिस डॉग, उसके लिए एक नया घर ढूंढ रहे हैं। लेकिन शर्त है कि जो भी ये लेगा उसके पास गार्डन होना चाहिए। इनके पास है क्या गार्डन? यस, इनके पास है ये हार्ट आइडल ग्रोशन गार्डन। यस, दे हैव ए गार्डन एंड दे आर रेडी टू टेक सेकंड डॉग। सो दैट्स व्हाई ये थोड़ा सा टिपिकल है कि हमको क्या पता कि इस तरह की कुत्ते की एक प्रजाति भी होती है, ये कुत्ता ये क्या है ना, थोड़ा सा ये टिपिकल है। गार्डन की वजह से ये किया जाता है, इसको आईडिया नहीं लगता था। हाँ, मतलब ये थोड़ा सा ऐसे ही है। नेक्स्ट वन मे बी प्रजा, विल यू रीड दिस? यस सर बेटा। Hier Albrecht Woodhouse Beruflichen Gründen und Lehen waren seinen Hund nicht mitnehmen. Er sucht ein neues Zuhause für ihn. सर इसका मैंने लगा जी, इसका मतलब है कि बिकॉज ऑफ प्रोफेशनल रीजन, ये बिकॉज ऑफ प्रोफेशनल रीजन उसको जो है बाहर जाना पड़ रहा है, शिफ्ट कर रहा है वो, और कुत्ते को साथ लेके नहीं जा सकता, इसलिए वो देख रहा है उसके लिए कोई नया हाउस। तो कोई ढूंढने को तैयार है कि यहाँ लेने को तैयार है क्या? सर इसका मैंने ऐप लगाया है। नेम है इरन होंड, ihre Katze während ihr Urlaubs, ये तो केवल छुट्टियों में ले सकते हैं भाई। मैंने सर नूल किया इसमें सर, ये दूली आएगा इसमें। इसमें प्रॉब्लम ये है, अदरवाइज तो चल जाती गाड़ी। इसमें ये कह रहे हैं कि während ihres Urlaubs, during your holidays, बट ये तो चाहता ही नहीं, ये तो छोड़ के जा रहा है, तो इसको वापस नहीं लेना, ये तो परमानेंट दे के जाना चाहता है, बस चलिए तो बेच के जाना चाहता है। So that's why it's not the answer. Null will be the answer. Okay. Next, Sardar. Gibson. Pure ear voice grosses aquarium roasted yuva noch einige Fische kaufen. So fish कौन बेच रहा है? इनको फिश खरीदनी है। यॉट में है? Yes, correct. Verkauf von Fischen. Here you can purchase because they are selling fishes. और हमको fish ही चाहिए, so that's correct. For your new aquarium, you would like to have some fishes. Yeah, das ist done. Richtig. Priya, next one. Karl will sich eine
Katze anschaffen. Mag diese Tiere, weil sie nicht viel Fleisch brauchen und wir selbstständig sind. कार्ल will sich eine Katze anschaffen. इनको एक कैट चाहिए. Mag, he likes this animal. Sie nicht viele Pflege brauchen. उनको ज्यादा केयर नहीं चाहिए होती. So what is the answer? Say. Arme Katze, gut möglich würde ihren Leuten bei der Übersiedlung einfach zurücklassen. Okay, wer nimmt sie? Ja. छोड़ दे इसको कोई ले लो. Yes, it's about the Blackie cat. Says the Antwort. Ja, das ist richtig. Says the Antwort. Anil, 19. Frau mag Vögel, die sucht zurzeit einen पापागाई. Papagei. पापागाई का मतलब है पैरट. तो पैरट में कईयों को तो फोटो देखते ही पता चल गया होगा. आंसर क्या है इसका? डे. ए इज द आंसर. फोटो देखते ही नहीं चलना चाहिए पता, पढ़ना है उसको. दिस इज नॉट आंसर. व्हाई इट इज नॉट? फोटो तो दिस पैरेट इज मिसिंग. ये तो इनका तो पैरेट खो गया. जब इनका पैरेट खो गया, इन्होंने तो ऐड दिया है किसी को मिल जाए तो दे देना. खो गया तो इसका मतलब इनके पास तो है ही नहीं. था वो भी उड़ गया. इनसे कहां मिलेगा आपको? देखो, गिजुक्स बिल्ड देयर ब्राउन पापागाई बुरली. हमारा बुरली उड़ गया रे. देयर आमर्स्टन यूनी aus Wien 21 with sit entflogen ist. उड़ गया. It is sehr zutraulich. Is the Antwort. Why? Grauen Papageienbabys liebevoll. और ये भी लिखा हुआ है zu verkaufen. बेच रहे हैं. So, is the Antwort. आ रहा है ना? Okay. Das war dann the Antworten. Und hier Kitten Mails. ये केटन मेल किसी को समझ में आया क्या? ये है क्या केटन मेल? किसको समझ में आ गया? केटन मेल क्या होता है? What is केटन मेल? हाँ, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं ना सर, वो एक तरह से वो 10 जनों को भेजो, आपको कुछ कर देंगे टाइप का. Anybody else? सर एडवर्टाइजमेंट है सर मेरे ख्याल से. ऐड वाले. या सर एड वाले मेल आते हैं ना यूज करते हैं. So these mails are like connected, kind of chain mails. Chain mails. Okay. Chain mails. Yes. ये वही मेल्स हैं जो कई लोग अपना प्रचार करने के लिए या ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजते हैं. कभी कभी प्रचार भी मकसद नहीं होता. मजे आते हैं. एक अच्छा सा, अभी मेरे को अभी 2 दिन पहले किसी ने भेजा तो मैंने भी व्हाट्सएप पे लगा दिया था उसको. लेकिन मैंने भेजा नहीं किसी को, कोई बुरा लग मान जाए, अपने व्हाट्सएप पे ही लगा दिया मैंने स्टेटस कि उसमें किस तरह से वो जलेबी खा रहे हैं, है ना. तो वो मान लो कि मैं अपने व्हाट्सएप पे ऐसे लगाने की बजाय मैं देख लेता हूँ अपने पास तो कई सारे बच्चे हैं, सबको खुश कर देता हूँ भेज के. राइट. तो फिर वो केटन हो जाता कि आप लोगों को भेजते हो, कोई भी पर्पज हो सकता है, बट कभी कभी तो आपको ये भी नहीं पता किसके पास चला जाएगा. आप तो भेज देते हो. कई लोग तो ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, है ना, जबरदस्ती जितने भी है सबको लेके. सो दैट इज किटन मेल्स. दे आर समटाइम्स अनवांटेड मेल्स और मैसेजेस. तो कईयों को उसमें मजा आता है. जैसे मेरे को वो मिल गया कल परसों तो मेरे को मजा आया. कई बार हंसी आई उसको देख के, जलेबी पकड़ में नहीं आ रही बच्चे के. तो ऐसे ही कोई भी रीजन से ये कैटन मेल्स इन लोगों को अच्छा लगता है या नहीं लगता. अगर इन लोगों को würde die Person bei einer Kettenmails mitmachen, if the person is happy on such mails, then ja. If the person is not happy, then nein. So 20. Ja oder nein? या सर. कैसे पता लगा तुमको? बताओ किस लाइन से, किस वर्ड से लगा या? इसमें लाइन है सर. एस इज नो ही पास हियर
या oder nie? Nein. कहीं तो बोल ही नहीं रहे, सोच रहे अपने पत्ते क्यों खोले, गलत हो जाएगा। क्या किया है अनिल? सर ये लाइन, सर उसके लास्ट वाली लाइन में लिखा हुआ डेयर डार्लिंग एक्सप्रेशन इज है पैनिक ग्रुप डेयर डार्लिंग एक्सप्रेशन। ओके, तो मतलब 9 हो गया। यस सर। इसीलिए तो अनिल बोल नहीं रहा, यूनुस बोल नहीं रहा। क्या हुआ? सर मैंने याद किया इसका आंसर यही होगा। क्यों होगा? देखो, आपने इसको गलत समझ लिया। पहली बात तो यहाँ पे ये कह रहा है कि लोग कहते हैं कि कंप्यूटर खराब हो जाता है। Mir ist noch नहीं पासियर्ड, हमारा तो कभी नहीं हुआ कंप्यूटर खराब। लोग कहते हैं वायरस आ जाते हैं, हमारे तो आज तक नहीं आए। 20 साल से ये कैटन मेल ही भेज रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। तो कह रहा है Mir ist noch नहीं पासियर्ड कि In the last line it says that I don't see any reason to speak against it. yes, the last line also is sehe keinen Grund der dagegen spricht. I don't have any reason which speaks against it. मतलब ये बंदा खुश है। He see no reason. So ja, 21 या कई लोग बोल नहीं रहे ना, इसका मैं ये मतलब नहीं करता। या किया है। ओके, यूनुस तुमने क्या किया है? शिल्पी, यूनुस, शिल्पी को तो आज पता नहीं था शायद। 9 सर। सर 9। अमन 9 किया है। सर ओके, किस कारण से किया वो भी बता दो अभी। 9 ही आएगा इसमें, 9 ही आएगा कि बंदा उसके फेवर में नहीं है। लेकिन क्यों? ये कह रहा है कि शुरुआत में लिखा लोजे इज जो हाँ, इसलिए उसे सपोर्ट कि मेरे को आ जाए ना तो मैं तो तुरंत डिलीट करूं उसको। और फिर लास्ट में देखो कि एक बार इनको आप या अगर रिसीव कर लो ना, डिलीट नहीं करो तो बम्बारिंग शुरू हो जाती है मैसेजेस की। गवर्नमेंट वेरबुम बम्बार्डियर्ड, एडवर्टीज और एडवर्टीजमेंट आने लग जाते हैं एक के बाद एक। तो नहीं चाहिए। 9 22 या oder nein? या किससे लगा या? The first line is probably Ich freue mich über ein Post, egal कैटन मेल और कैसी आए, मुझे तो मेल आती है तो खुशी होती है। ओके, और तो लास्ट में Das ist doch gut am Internet। यही तो चीज है जो इंटरनेट की मुझे बढ़िया लगती है। Und das geht auch für कैटन मेल्स। तो इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैप्पी है ये तो। या नेक्स्ट 23 9 किससे लगा? सर लास्ट लास्ट dann vielleicht reagiert man an die andere Frage. It's kind of a fraud that somebody moved blood and to call that person, and when they call that person, or something. So he said it. इसके आंसर में क्या था? याद लग रहा है मुझे तो। याद क्यों लग रहा है मुझे? देखो, इसने अगेंस्ट कुछ नहीं बोला। इसने क्या बोला है? ये इस सारे में ये एक स्पेशल था जिसमें न्यूट्रल सा लग रहा है। इसमें बोला है दी फ्रागे स्टीमर वास दा आइडेंटिटी ड्रेन स्टेट कि कैटन मेल आ रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर क्या आ रहा है वो देखो आप तो। दी फ्रागे स्टीमर वास दा ड्रेन स्टेट wenn es ein Aufruf in der Not ist, zum Beispiel Blut zu spenden, würde es auf jeden Fall einmal nachprüfen। अगर कोई मेल भेजे और बोले कि ब्लड चाहिए हमको, तो मैं एक बार चेक जरूर करता हूँ कि सच में चाहिए क्या, कि मेरे ब्लड का मिसयूज तो नहीं करेंगे। würde es jeden Fall nachprüfen। तो इसने अगेंस्ट अभी तक कुछ नहीं बोला। Bei diesen Mails müsste dann auch stehen, wo man sich telefonisch erkunden kann।
अगर ऐसी मेल होगी तो जरूर उसमें दिया होगा कि कहां पे चेक करें अपन। Da ruft man an und informiert sich. Ich mache also immer erstmal eine Mail auf. मतलब मैं तो मेल को ओपन करता हूँ, तो मेल को ओपन करता है तो मतलब इसको तो है मन में, राइट? मेल को ओपन करने की जरूरत कहाँ है? इसको कह रहा मेल ओपन करता हूँ, और इसको देखो यहाँ तक भी कोई बुरा नहीं लग रहा। Aber ehrlich gesagt würde ich sie nicht weiter schicken. बट ईमानदारी से आपको बताऊं तो मैं उसको आगे नहीं भेजता। कभी भी कोई मेल आती है ना ऐसी, तो मतलब रिसीव तो करता है खुशी खुशी, आगे नहीं भेजता। क्यों नहीं भेजता भाई आगे? Then vielleicht ärgert sich anderen damit nur. Maybe people, yes, people may angry, maybe angry. तो इसका मतलब ये चुपचाप रिसीव करने में इसको कोई दिक्कत नहीं है, आगे नहीं भेजता। So er ist dafür, ja। अगेंस्ट तो कुछ भी नहीं बोला इसने शुरू से। ओके, 24 या oder nein? Ja. Ja. Why ja? Ja. Ja, why? Am Ende. Am Ende ist freue sich auch. Okay, 2 Rezepte habe ich schon und ich freue mich auf die nächsten. मेरे को 2 रेसिपी तो मिल गई है, मुझे ये रेसिपी ढूंढ रहा है शायद, या ढूंढ रही है शार्लोटे बोलती है मेरे को तो ऐसी कैटरिंग वेल से कई कुकिंग रेसिपी मिली है, अब मैं दाल बना लेती हूँ खुद ही, कढ़ी बना लेती हूँ खुद ही। तो 2 रेसिपी तो मुझे मिल गई है और मैं चाहती हूँ कि और आए जल्दी से जल्दी। सो या, जी ist dafür, Stefan ist auch dafür। 25 Viktor, ja oder nein? 9. Yes, sir. 9 sir। 9, okay, why 9? Say the reason बताओ तब बात बनेगी। Why 9? First line is Die E-Mail ist nicht für Spieler erfunden worden। ये मजाक करने के लिए मेल का आविष्कार नहीं हुआ है, ओके? Sondern um die Kommunikation zu erleichtern। Deshalb kann ich nicht verstehen, I don't understand, dass es Leute gibt, die bei einer Kettenmail mitmachen। समझ नहीं आता, लोग पागल हैं। So eine Zeitverschwendung, what a nonsense, time wastage of time। So 9 है भाई ये तो। Da könnte man etwas Besseres, अरे कंप्यूटर कोई ढंग का काम ही कर लो, यही काम करने के लिए है क्या? लोगों को फोन करो, अपने दोस्तों को, खुश रहो। So 9, ये तो इस काम में नहीं है। 26, ja oder nein? 9, sir. 9. Das schrecklichste sind diese Kettenmails। अच्छा, इसी से पता चल रहा है कि सबसे बकवास चीज कोई है धरती पे तो यही है, schrecklichste diese Kettenmails। Kann ich nicht unterstützen auch. Yes, I can't support and ich will bei keiner mehr mitmachen। I am not interested in this। So 9, this person is not in favor of this। So या 9, या 9 ऐसे आपको एक आइडिया लग जाएगा करते करते। डोंट वरी, दिस वाज द फर्स्ट वन and then the last one, 5th one। Here also generally there are some rules and regulations about a hotel में भी, कोई रेस्टोरेंट के बारे में हो सकता है, किसी स्कूल के बारे में हो सकता है, किसी स्कूल के हॉस्टल के रूल्स एंड रेगुलेशन हो सकते हैं इसमें, कभी कभी कोई म्यूजियम के बारे में हो सकता है कि कितनी बजे टिकट मिलेगी और कैसे, कभी कभी ओल्ड एज होम के बारे में हो सकता है कि इस ओल्ड एज होम में क्या सुविधाएं हैं, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, इंस्टीट्यूट के बारे में हो सकता है। सो जनरली हियर यू विल फाइंड रूल्स एंड रेगुलेशन अबाउट सम पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, सम स्कूल। ओके, हियर Führungen, there is a museum, Deutsche Museum, weil Sie es besuchen wollen। So you are taking this information, you are reading because you want to visit it। Führungen about the visits, A, B, C। What is the answer and where is the answer? About their Führungen। So generally यहाँ पे Führungen दे रखा है तो हो सकता है इसका आंसर Führungen में ही मिले, ये आपके लिए हिंट रहता है इसमें।
फटाफट काम की चीज वहीं पे पढ़ लो। सो Führungen sind für Schulklassen gratis, gratis मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, umsonst, gratis, ohne Kosten, so frei, सब एक ही बात है। सो स्कूल क्लासेस के लिए फ्री है क्या ये? जोल्टन फॉर टेलीफोनिश gemeldet werden, आपको टेलीफोनिकली बुक करना है क्या? Finden nicht nur auf Deutsch statt. So these are not only in German but also in other languages. sind für Schulklassen gratis. स्कूल के बच्चों के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहे हो आपको। Führungen und Vorführungen für Einzelpersonen und Familien sind kostenlos. ओके, शूलर und स्टूडेंटन, इसमें तो 3 यूरो आ रहा है इधर तो, है ना? एंड देन तो उसके नीचे Eintritt für Mitglieder und unter 6 Jahren frei. सो Eintritt म्यूट सर लीडर हमारा पोस्टल लॉस नहीं, कॉस्ट लॉस तो 6 के 6 साल से छोटे वाले का है, छोटो। Führungen und Vorführungen, Führungen und Vorführungen für Einzelpersonen und Familien sind kostenlos, außer, लेकिन इसमें भी शर्त लगा दी, außer पेंटोरियम, मतलब इसमें ये कह रहा है कि म्यूजियम का एक पर्टिकुलर पार्ट जो है वो फ्री में देख सकते हो, लेकिन ये बाकी का नहीं। प्लानेटारियम एंड यूबरजिस्टफिरूम, इसमें ये वाला फर्स्ट पार्ट तो फ्री में देख जाओ, लेकिन ये वाला नहीं होगा उसमें, तो फ्री तो नहीं हुआ ना बिल्कुल। फिर तो सब पे होगा सर इसमें। आप समझ तो गए ना? अवसर मतलब कंडीशन लगा दी कि कोई बोले कि हमारा म्यूजियम है लेकिन बाहर बाहर का गार्डन फ्री में देख जाओ, म्यूजियम तो अंदर है, माल तो वो देखना है हमको। सर ये फ्यूरोंगन और फोर्ट फ्यूरोंगन दोनों का सेम नहीं है? फॉर फ्यूरुंगन का मतलब तो मान लो विजिट अंदर, और फॉर फ्यूरुंगन हो सकता है बाहर का कुछ जनरली अंदर घुमाने से पहले कोई बैठ के थोड़ा बताता हो उसके बारे में। जैसे मान लो कि मैं आपका गाइड हूं, आपको कोई म्यूजियम में ले जा रहा हूं, तो फॉर फ्यूरुंगन वो होता है कि म्यूजियम में जब आपके साथ जाऊंगा मैं तो वहां बताऊंगा ये वाला हथियार कौन से जमाने में यूज किया गया था, ये भाला जो है महाराणा प्रताप का है, वो तो साथ साथ जब अपन घूमेंगे तब बताएंगे। लेकिन फॉर फ्यूरुंगन उसको बोलते हैं कि मैं सबको आपको यहाँ बिठा लूं कि अपन अंदर चल रहे हैं। ध्यान रखना कि हर बार मैं जिनको लेके आता हूँ वो मेरी बेइज्जती करा देते हैं, उसके भाले को हाथ में उठाने की कोशिश करते हैं, ऐसी हरकत मत करना, है ना? और कैमरे जो है ना, फोटो मत लेना अंदर, कैमरा जब्त हो जाएगा, तो पहले थोड़ा समझा के ले जाना पड़ता है अपने लोगों को। सो दैट इज फॉर फ्यूरुंगन, फॉर फ्यूरुंग, कि अंदर नाक मत कटवा देना मेरी, सवाल पूछना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं पता चले कि महाराणा के पकड़ के गले में फोटो खींचने की कोशिश कर रहे हो, वहां वो अलाउ ही नहीं है टच करना, दूर से ही देखना है, फोटो भी नहीं खींचनी है। तो ऐसी कुछ बातें समझा के ले जाता हूं अंदर कि अपन यहां से जाएंगे, 40 मिनट लगेंगे अपन को, साथ साथ रहना सब लोग, ऐसे। दैट इज फॉर फ्यूरुंग। सो हियर Schulklassen Führungen, Übersichtsführungen, Fachführungen, ये अलग अलग। Fachführungen हो सकता है कि हिस्ट्री के बच्चे आए, जैसे मान लो कि मैं गाइड हूं, मेरे को बहुत नॉलेज है इस म्यूजियम के बारे में, लेकिन जनरल जो जनता आती है उनको तो 4 चीजें बता के रवाना कर देता हूं, लेकिन जो हिस्ट्री के बच्चे आ गए, वो स्पेशली हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, वो तो 40 चीजें पूछेंगे। उनको तो आप ये भी नहीं बता सकते कि 1725 में हुआ था, वो कहते हैं क्या, एक बार वापस बोलना, कितने में हुआ था? 1725 नहीं 24, हाँ ध्यान रखो इसको। तो ये फाक फ्यूरुंगन मतलब एक्सपर्ट, उसमें थोड़ा सा खास ध्यान रखना पड़ता होगा। in Deutsch und Fremdsprachen, it is in German and also in foreign languages, एक ऐसा भी कुछ था शायद इसमें। und Anmeldung schriftlich bitte 6 Wochen vorher, अगर आपको इस म्यूजियम को विजिट करना है तो 6 वीक पहले रिटर्न में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा,
मतलब हो सकता है मेल लिख के, मतलब टेलीफोन से तो काम नहीं चलेगा। स्विफ्टली इसका मतलब है रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। So gratis is not, Schulklassen it's not free of cost. Sollten for a telephone, say is the antwort, say होगा, because लिखा है यहाँ पे finden nicht nur auf Deutsch, it is not only in German. Yes, it is not only in German because it is also in foreign languages. It's written in Deutsch und Fremdsprachen, also in foreign languages. So maybe French, Spanish, Chinese, Italian. Sir, but we have to start. Start finden, start सब ये होना चाहिए ना कि एक हफ्ते पहले लिखित में होना चाहिए वैसे हाँ वो इसका थोड़ी होगा। दोबारा बोलो, आपका क्वेश्चन सुना नहीं, इधर पटाखा बज गया था। So we haven't nicht nur auf Deutsch start. So start finden, the start finden का मतलब है take place. These Führungen just do not happen in German, they also happen in other languages. Start finden means to take place, to happen. Yes, it's trainbar verb. So that's why says the antwort. Raja, is it clear? क्लास Yeah. Where Mitglied ist means if you are member, what is the facility available? Members, कई ऐसे मेंबर बना लेते हैं, जैसे मान लो कि मैं, मेरे दोस्त लोग आते रहते हैं यहाँ पे म्यूजियम में, मैं जाता रहता हूँ उनके साथ, तो मेंबर हूँ मैं, ऑलरेडी मैंने एक मेंबरशिप ले रखी है, तो मेंबर होने के नाते मुझे कुछ छूट है, वो क्या छूट है वो देखना पड़ेगा इसमें। Ist auf jeden Fall erwachsen, मेंबर जो भी है वो अडल्ट होना चाहिए, ऐसा है क्या इसमें? Where Mitglied ist braucht keinen Eintritt zu bezahlen, उसको अलग से पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो मेंबर है, तो ऑलरेडी उसके पास तो मेंबरशिप है, तो मेंबरशिप के तो पैसे लगते ही हैं, अब वहां जाने की भी थोड़ी लगेंगे। और ली इसलिए ताकि जितनी चाहूं उतनी बार जाऊं। darf nicht allein das Museum besuchen, मेंबर होगा तो अकेला नहीं जा सकेगा, फिर किस लिए बनूंगा भाई मेंबर? इसमें क्या है देखते हैं। सब ये होगा सर मिटग्लीड का यहाँ राउट प्लान फाइन वो साले यस यही है ना एंट्रेट Eintritt means ticket. यस, सो इसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी कि Jahresbeitrag आपका अगर मेंबरशिप 52 यूरो की है वो können Sie mit einer Mitgliedperson, Begleitperson, you can take one person always with you or two Kinder, zwei Kinder, आप दो बच्चे लेके जा सकते हो कभी भी, और खुद तो जा ही सकते हो ऑफ कोर्स, दो बच्चों को लेके कभी जा सकते हो, और आपके खुद के बच्चे तो जितने हो उतने ले जाओ, खुद के होने चाहिए। आपके मान लो 6 हैं बच्चे, तो 6 के 6 ले जाओ, नंबर से जाओ सब लोग साथ मिलके। Untersetzen Jahren Deutsche Museum besuchen, ओके, बट वो 16 ईयर से छोटे होने चाहिए आपके सारे बच्चे। आप बोलोगे ये मेरे बच्चे ही है, वो पता चले 53 साल का तो तुम्हारा बच्चा ही है, क्या करे इसका, तो 16 तक का ही होना चाहिए। ये तो कैसे बच्चा है, बड़ा हो गया है, तो 16 के बाद अलाउ नहीं है। Jahresbeitrag für Schülerinnen, ओके, सो बेस द antwort, richtig, अडल्ट ही होना चाहिए ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चे भी जाएंगे ना, यहाँ लिखा है 6 साल से छोटे वाले का फ्री है, इसका मतलब जा तो वो भी सकता है, तो बच्चे भी जा सकते हैं, बड़े भी जा सकते हैं, बट यू नीड नॉट पे इफ यू आर ए मेंबर। Im Museum kann man, what you can do in Museum, Behinderte alle Ausstellungen besichtigen, जो अपाहिज लोग हैं, स्पेशली एबल्ड जिनको हम बोलते हैं, वो लोग सारे एग्जीबिशंस विजिट कर सकते हैं। Auch Bücher kaufen, they can purchase, you can purchase books. Nur warm essen, you can eat only warm. Just say here. Only warm. गास्ट्रोनॉमी में मिला होगा खाने का, तो रेस्टोरेंट ओवर स्लोश 9 bis 17 Uhr warme Küche, जनरली इस टाइम के बीच में आपको गर्म किचन रहता है जनरली, और कुछ भी नहीं है क्या खाने को, बट कैफेटेरिया इज आल्सो देयर, कैफेटेरिया भी है भाई, एड के शोस पे यहाँ पे
तो कैफेटेरिया में तो सब मिलता है ना, और भी खाने पीने की चीजें वो भी तो रहती है ना, चिप्स वगैरह सब कुछ मिलेगा कैफेटेरिया में, तो वो जरूरी नहीं है वार्म ही हो। इसके अलावा सर इंग्लिश लॉ है मतलब, हाँ इंग्लिश लॉ है हाँ, इंग्लिश राउंड का मतलब होता है फास्ट फूड। फास्ट फूड तो गर्म ही होता है सर। नहीं, जरूरी नहीं है गर्म ही हो फास्ट फूड, नॉट नेसेसरी। फास्ट फूड तो चिप्स भी हो सकती है, फास्ट फूड तो कोका कोला और चिप्स का वो भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। एंड द फर्स्ट वन, पहला क्यों नहीं है? Als Behinderter alle Ausstellungen besichtigen. Why not A? मेंशन ही नहीं कहीं। Behinderten, ये रहा Behinderten Zugang. Rollstuhlfahrer können fast alle Ausstellungen über Rampen und Aufzüge erreichen. कि जो भी behinderte person है, können fast alle Ausstellungen, वो लगभग सारे एग्जीबिशंस जो हैं उन पे जा सकते हैं। सो इज इट करेक्ट और फॉल्स? फॉल्स, इट्स नॉट करेक्ट। व्हाई? फास्ट के कारण गलत हो गया, अदरवाइज ये सही हो जाता। फास्ट का मतलब है ऑलमोस्ट, दे कैन विजिट ऑलमोस्ट ऑल द एग्जीबिशंस, तो ऑलमोस्ट ऑल द बोल रहे हैं, इसका मतलब एक आध है जहां वो नहीं जा सकते, नहीं तो फास्ट की क्या जरूरत थी? फास्ट का मतलब है ऑलमोस्ट। जैसे मान लो कि 100 एग्जीबिशन है और 98 में जा सकते हैं, तो भी तो ऑल तो नहीं हुआ ना, ऐसे। So ich denke B ist die Antwort. Deutsches Museum Shop, इसमें है क्या कुछ? Führer Katalog, ये सब ले सकते हो आप। Johnstige Veröffentlichungen des Deutschen Museums, इनके पब्लिकेशंस हैं कुछ जो बेचते हैं ये। Grosses Sortiment an Technik und wissenschaftlichen Literatur, Literature, Verzeichnis der Lieferwaren Publikationen im Museum। Lieferwaren का मतलब है कि आप अगर ऑर्डर करो तो वो भिजवा भी देंगे ना, so you can purchase there गाइड बुक वगैरह और वो सब आपको मिलेंगी। Ich denke, B sollte die Antwort sein. Das Museum erreicht man 30 öffentliche Verkehrsmittel. A, B, C. तो 29 में क्या होगा आंसर? 29 में मेरे ख्याल से B होना चाहिए। ये इधर मेंशन दिया हुआ है। ये अपने पब्लिकेशन बेच रहे हैं ना, लिफरंटन, मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। नहीं सर, ये गैस्ट्रोनॉमी में लास्ट लाइन का क्या मतलब है? एसएल फॉर मिड ब्रेक राफ्टन बॉक्स। अब डिक्शनरी में चेक करते हैं क्या मीनिंग है इसका, फर्से का। मतलब ऐसा सब पॉसिबल सारे बेक किए हुए होने चाहिए प्रोडक्ट, तो फिर ये बार ऐसा नहीं हो सकता है सर, पूरा बार कुछ मिड के ब्राफ्टन का मतलब तो होता है कि आप अपना खुद का अगर लेके आते हो कुछ खाने पीने का। मिड ब्रिंगन तो होता है ना साथ में लाना, मिड ब्रिंगन का मतलब साथ में लाना होता है। आप अपना साथ में लाया हुआ भी खा सकते हो वहां पे, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। या ग्राइसिस में क्या है? दस म्यूजियम सर इसमें वार्म ट्यूसडे आएगा क्योंकि ये 9 से शाम को 5 बजे तक वार्म ट्यूसडे ऑन रहता है, ये रेस्टोरेंट में 9 से 5 बजे तक खुला रहता है। नहीं, अगर मान लो तुम आंसर की लिस्ट है तुम्हारे पास तो हो सकता है ये आए, आंसर की लिस्ट कर लेंगे बस। तो फिर अभी ये क्लियर नहीं है, इसमें इससे पता नहीं चल रहा एक्चुअली। कैफेटेरिया में तो वो भी मिलता है ना, रेस्टोरेंट। कैफेटेरिया का टाइम नहीं, टाइम कुछ भी हो, टाइम मान लो इसमें 1 घंटे ही मिलता है कैफेटेरिया का खुला, तो भी मिलता तो है।
Okay, sir. उस तरीके से Dreißig, das Museum erreicht man. How you can reach to museum? Say, Mit jeder S-Bahn? Yes, sir. ऐसा नहीं होता। Okay, alle S-Bahnen, ना? Alle मतलब jeder. Alle S-Bahnen means jeder S-Bahn. Ja, das ist richtig.